Hello everyone. So today in this education class we will discuss that where is the problem of mathematics actually. I have seen a lot of students of class 3 or maybe 4. Okay. So they are not able to grasp the basics of mathematics. So what to do in this case? They are going to the school and they're learning the things, coming back home. I don't know what they're doing after that, but when you ask them what is the, for example, when you ask them division 35 divided by 7, sorry 5, the answer will be somewhere around 6 or 8. I think that it's just like literature. There are some students, so I don't want to harass them or do anything in this video like discrimination or anything. I just want to help them through my videos so that they can avoid some silly mistakes like these in future. Okay, so let's start without any further delay. uh, I will start with division because division is very difficult for them. So suppose 101 we divide it by 3. Okay, and how to do it? 3 into 3. Okay, for that we have to yeah, understand the multiplication table. Okay, multiplication table we have to understand, and we have to mug it up. Multiplication table. To understand division we have to first mug up the multiplication table. Now you will ask me, what do you mean by multiplication table? Multiplication table is a table in which we have the products of numbers like 1 1 ja 1, 1 2 ja 2, like this. So then 2 1 ja 2, 2 2 ja 4. So it is there till 25 into 1, then 25 into 10. Okay, so this is the multiplication table. If we remember that, in that we have one entry, 3 into 3 is equal to 9. Now when we grow to higher classes, we don't have the time always to do the analytical mathematical operations in each and every steps. जैसे कि if we are in the exam hall and we have been given this question, we cannot write down the multiplication table like this. तो we have to do what? We have to mug it up. अब आप पूछेंगे भाई 3 into 9, 3 into 3 भी मैं प्रूफ कर दूंगा एग्ज़ाम हॉल में, ये पॉसिबल नहीं है. We don't have time. For this question we have only 1 minute. So let's try to solve it. So 3 into 3 9 होगा. 10 minus 9 is remainder is 1. तो 3 4 से 12 होता है. 3 4 से 12 होता है. 12 तो 10 से ऊपर है, कैसे माइनस होगा? तो 3 3 से 9 इज़ द मैक्सिमम फर्स्ट डिजिट ऑफ द क्वोशेंट, ऐसे समझते हैं. ठीक है, तो 3 3 से 9 हो गया, रिमाइंडर 1 रह गया. जो यहाँ पे जो 1 है वो ऐसे नीचे उतर जाएगा फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक. ठीक है, वो उतर गया. अब क्या हुआ? 11. व्हाट इज़ द बेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 3 एंड लीव्स द रिमाइंडर 2, एंड दैट इज़ 3 अगेन. सो 3 3 3 जा 9, क्या हुआ? रिमाइंडर 2 हुआ. ठीक है, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया आपका रिमाइंडर. 33 हो गया आपका क्वोशेंट. ठीक है, 33 हो गया क्वोशेंट. 3 हो गया डिवाइज़र. सो अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डिविडेंड, जो आता है आपका डिवीजन एल्गोरिदम. डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? डिवीजन एल्गोरिदम कहता है डिवीजन एल्गोरिदम कहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया? रेम लिख दिया. ठीक है. नाउ ये वाला जो क्वेश्चन मैंने किया था उसको देखते हैं सही है कि नहीं. 101 डिवाइजर कितना था? 3 था. क्वोशेंट कितना था? 33 था प्लस 2. इसका सही हुआ कि नहीं? क्योंकि 3 into
33 इज 99 प्लस 2 101 इक्वल टू 101। ये प्रूव हो गया। सो ये वाला जो ऑपरेशन हमने किया ये वाला, तो इसमें डिवीजन एल्गोरिथम क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ, तो ये सही है। तो डिवीजन जब आएगा तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये हो गया डिवीजन। अभी देखेंगे फ्रैक्शन तो हमने पढ़ा है, हायर क्लासेस के लिए पढ़ा है, तो क्लास 3 में फ्रैक्शंस हैं भी थोड़े बहुत। तो अगर हमारा कोई सपोज 55 एक डिविडेंड है, अब 55 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 11 होगा। 55 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 55/7 होगा। ये कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो इसका हमें क्लास 6 में पूरी दिया है, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, क्लास 7 में भी बताया है। ये सब है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें 7/9 ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 क्या है, न्यूमरेटर, 9 क्या है, डिनोमिनेटर। तो इफ़ अभी ये वाला स्लाइड अभी कंटिन्यू हो रहा है डिवीजन, ठीक है। इफ़ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन इट्स ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें 7/9 क्या है, प्रॉपर है। 55/7 क्या है, इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम और एक तरीके में भी लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम और एक तरीके में भी लिख सकते हैं, वो है मिक्स्ड, ठीक है। 55/7 को हम लिखते हैं 7 × 7 49 प्लस 6/7। 49 प्लस 6 कितना है, 55। सो 7 6/7। सो ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, 7 होल है 6/7 ये। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि अब पिज़्ज़ा का देख लो। सपोज एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। इसको हम 7 भाग करेंगे, ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया 7, 1 2 3 4 8 हो जाएगा। चलो ठीक है, एक बड़ा पिज़्ज़ा लेके 3 4 7 8, इसमें 8 पार्ट्स है। तो सपोज ये पिज़्ज़ा का ये वाला क्वेश्चन, तो हम इसका भी हम करेंगे ग्राफिकल। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। लेट अस ऑब्जर्व इट केयरफुली। सपोज हमने एक फैमिली साइज पिज़्ज़ा मंगाया, कहाँ से मंगाया, डोमिनोज से मंगाया, ठीक है। सपोज तो हमें 8 स्लाइसेस मिल गए, लार्ज पिज़्ज़ा है ये। लार्ज पिज़्ज़ा का तो 12 होते हैं, चलो आज़ूम करते हैं कि भाई 8 स्लाइसेस हैं। तो मेरे पास कितने लोग हैं वो भी देखना पड़ेगा, मुझे लोगों में बांटना पड़ेगा ना। कैसे बांटूंगा, अगर मैथमेटिक्स आता होगा तभी बांट पाऊंगा, ठीक है। आई हैव 8 पीसेस, मेरे पास 3 आदमी हैं। कौन कौन है, अमित, बबीता और कैरी, 3 लोग हैं। तो आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 3 पीसेस टू देम। कैसे करूँगा, ये जो एक पीस है ना, ये एक पीस को सपोज मैं ऐसे लिख दिया, ऐसे एक डायग्राम कर दिया। तो ये एक पीस क्या है, 1/8 है ना, 1/8 है। तो सपोज मैं पहले किसी को, अमित को एक पीस दिया तो 1/8 दिया, बबीता को 1/8 दिया, कैरी को 1/8 दिया, 3/8 हो गया। मतलब 1/8 मतलब कितना, एक स्लाइस।
8 स्लाइसेस में से एक स्लाइस पिज़्ज़ा, इमेजिन करो कि पिज़्ज़ा खा रहे हो। फिर सेकेंड राउंड में फिर से 1/8 दिया, ठीक है। थर्ड राउंड में फिर से 1/8 दिया। तो सब एडिशन करता जाऊंगा, 3/8 3/8। और एक क्या किया, कैरी को थर्ड राउंड में पिज़्ज़ा दिया ही नहीं, 2/8 हुआ, ठीक है। 2/8 जो हुआ, तो अभी टोटल करते हैं ना, कितना होगा, 3/8 3/8 6/8 प्लस 2/8 8/8 1, ठीक है। ये है फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट। अब since it is 8 pieces, you cannot divide among 3 people equally. Among how many people you can divide it equally? Among 4 people. Very obvious. This is class 1 मैथमेटिक्स। अगर 4 people, अगर डी एक आ गया, डोंकी एक आ गया, सपोज डोंकी को भी पिज़्ज़ा पसंद है, फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ डोंट टेक इट लिटरली। तो अगर डोंकी आ गया तो हमारा यहाँ पे जो आइट्रेशन है वो बदल जाता। कैसे बदलता देखते हैं, कैसे बदलता। डोंकी को भी पहला राउंड में 1/8 मिलता, ये राउंड 1 है, राउंड 2 है, फिर 1/8 फिर 1/8 फिर 1/8 फिर 1/8 2/8। तो 2 राउंड में ख़त्म पिज़्ज़ा। भैया लार्ज पिज़्ज़ा लाए हैं ना, ख़त्म तो होगा ही। 2/8 2/8 2/8 2/8, टोटल कितना हो रहा है, 2/8 प्लस 2/8 4/8 6/8 8/8, तो टोटल इज 8/8। सो 2/8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4, लिस्ट कॉमन जो होता है हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म। 1/4 मतलब कितना, अगर ये 1/2 है, सॉरी 1/8 है, हाँ ये वाला 1/8 है, ये वाला पिज़्ज़ा, उसमें और एक पिज़्ज़ा मिल गया 1/8, टोटल कितना हुआ, ये बड़ा साइज़ पिज़्ज़ा हो गया, एकदम चीज़, बस देखो कैसे चीज़ निकल रहा है इसमें से, ठीक है। ये हो गया 1/4 ना हो। अभी हम देखेंगे, चलो हमें 4 लोगों में सपोज़ एक बड़ा सा पिज़्ज़ा हमें निकालना है, सॉरी एक बड़ा सा पिज़्ज़ा है, जैसा हमारा ये डायग्राम है देखिए, ठीक है। उसको हमें 4 लोगों में डिवाइड क्या, द पिज़्ज़ा इक्वली अमंग 4 पर्सन्स, ठीक है। तो सबको कितना मिलेगा, पहला बंदे को मिला 1/4, दूसरा बंदे को मिला 1/4, 1/4 हाफ 1/4 नहीं, 1/4 इतना होगा ना, हो गया इक्वली। ये ए को मिला, ये बी को मिला, ये सी को मिला, ये डी को मिला। अब ये था 1/8, ये हो गया 1/8, तो टोटल हो गया 1/4, ठीक है। ये 1/4 1/4 1/4 25%, वो भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ये है तुम्हारा मैथमेटिक्स। इसमें कुछ अजम्पशन चलता नहीं है। इसमें जैसे सूर्य हर दिन सुबह आता है शाम को जाता है, उसमें कोई अजम्पशन है, कुछ चेंजेस है नहीं है। सो हम लोग +2 में एक चीज़ पढ़ेंगे, +2 मतलब क्लास 12th, +2 में हम एक चीज़ क्या पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स इज़ द, फोकस हो जा भाई, हाँ, मैथमेटिक्स इज़ द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो क्या बोलता है, अगर सारे सब्जेक्ट्स एक पक्षी हैं, ठीक है, अगर सारे सब्जेक्ट क्या हैं, पक्षी हैं, तो हमें
मैथमेटिक्स को क्रेस्ट ज्वेल करके पकड़ना है। सपोज वो पीकॉक का एक क्रेस्ट ज्वेल होता है, आप गूगल कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर मैथमेटिक्स हमें आता है तो स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा बहुत डिवीज़न देखा। आगे अभी 5 मिनट के लिए नंबर्स देखेंगे, फिर वी विल वाइंड अप दिस क्लास। आज का डेट क्या है? 1 अक्टूबर। फॉर सम इट्स सैलरी डे, बट नॉट फॉर यू गाइज, आप लोग तो बच्चे हो। अभी देखेंगे थोड़ा नंबर्स में क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ नंबर्स। नंबर्स तो हम +2 में भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं, कैट के लिए पढ़ते हैं। और कैट में नॉर्मल कैट जो मैं 2-3 साल पहले का फॉर्मेट बता रहा हूँ, 30% क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम नंबर्स और अरिथमेटिक फॉर दैट मैटर, और क्वांट। रिसेंटली हाल ही में थोड़ा चेंज हुआ है पैटर्न, तो अगर उसको हम थोड़ा सा नेगलेक्ट करें अभी के लिए 15 मिनट के लिए, तो अरिथमेटिक में 30% क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इफ़ यू बिकम एन MBA बाई चांस, या फिर आप इंजीनियर बन जाओ, तो आपको सिर्फ नंबर्स में ही डीलिंग्स करना है। सपोज़ मैं मेरी एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरे को ऐसे सर्किट्स को हैंडल करना पड़ता है। सपोज़ ये वोल्टेज है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है, ठीक है, यहाँ पे करंट जा रहा है। तो इसमें फॉर्मूला है, नो डाउट फॉर्मूला तो रहेगा। ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अगर कैपेसिटर नहीं है तो फॉर्मूला है V = IR, ओम्स लॉ। इम्पिडेंस, करंट, वोल्टेज। तो सपोज वोल्टेज है 5 वोल्ट, करंट जा रहा है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस निकालो 5/2। ये क्या ऑपरेशन है? नंबर्स है ना, ये नंबर्स है या इज इट नंबर्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इक्वेशन 1, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम ख़त्म। ये जो डिडक्शंस हैं ये कौन करेगा? नंबर्स करेगा, मैथमेटिक्स करेगा, नंबर्स करेगा। फॉर दैट मैटर मैथमेटिक्स में सिर्फ नंबर्स ही यूज हुआ है, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है, ओके। ये एग्जांपल मैंने दे दिया। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिसमें व्हेन यू बिकम ए मैनेजर यू हैव टू ओनली डील विथ नंबर्स, नथिंग एल्स। जैसे कि हमारा जो IMS ट्यूटोरियल है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये रेक्टेंगल दिया है, यहाँ पे पार्किंग एरिया है, पार्किंग है, यहाँ पे फैक्ट्रीज बनेंगे, तो बताओ कि भाई हाउ टू एफिशिएंट पार्किंग का मॉडल बना के दिखाओ। फॉर एग्जांपल एफिशिएंट पार्किंग क्या करने से तुम्हारे सारे स्टाफ और विजिटर्स का गाड़ी सेफली रह सकता है, क्या करने से? कोई बात नहीं, हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल टेक्निक, इंजीनियरिंग टेक्निक, MBA टेक्निक। उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। जो स्पेस है उसको सबसे ज़्यादा हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन करके हमने किया, कुछ नंबर्स निकल गए। ऐसे 500 लोग हैं, पर हेड सपोज 2 पार्किंग स्पेस चाहिए को 250 दीज आर द प्लेइंग विथ नंबर्स। तो हो गया ये। दैट्स वाई नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ गए अभी? अब नंबर्स क्या है? पहले तो है नेचुरल। आपका नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी क्या है हम बताएंगे फ्यूचर क्लास में, अभी याद कर लो बस। अभी क्लास 3 हो ना, ज़्यादा इन्फिनिटी तक मत सोचो। इन्फिनिटी मतलब आकाश, आकाश में जितने तारे हैं इन्फिनिटी उतना है।
समय है तो काउंट कर लो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हो गया। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। ऑड नंबर आपका 1 3 5 7 9 एट्सेट्रा। इवन नंबर 2 4 6 8 एट्सेट्रा। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 17 19 23 21 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 31 37 33 35 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 41 होगा, 43 होगा, ऐसा चलेगा, ठीक है। इवन ऑड प्राइम कंपोजिट, कंपोजिट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है ऑल अदर नंबर्स, natural numbers which are not prime, ठीक है। ये सब हो गया। पहले हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। और क्या बचा, ठीक है। आज फिर सिर्फ 6 नंबर देखते हैं और 3 मिनट में क्लास ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ बेयर विथ मी, ठीक है। तो ये हो गया नंबर्स। हम लोग आज पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे। नेगेटिव नंबर्स का भी एक है, लफड़ा है थोड़ा, क्योंकि जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं उतने नेगेटिव भी हैं, ठीक है। ये क्लास 6-7 में आपको नंबर लाइन में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए बस याद कर लो भाई, नेगेटिव भी आएंगे, ठीक है। तो हो गए ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। प्राइम नंबर मतलब क्या है, अच्छा और एक चीज़ भी याद करो, याद रखो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। ऐसा ही याद रखो बस। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, नहीं क्वेश्चन मैंने गलत बोला, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोलोगे तो 1 आएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो माइनस इन्फिनिटी है ना। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होल नंबर, दैट इज 0। अच्छा नेचुरल नंबर में माइनस आता है क्या, नहीं आता है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं डगमगा गया कॉन्सेप्ट में, क्योंकि मैथमेटिक्स चीज़ ही वैसा है, नो वन इज़ परफेक्ट, प्लीज़ सो बियर विथ मी। मैं थोड़ा गलती करूँगा, ऑब्वियसली आई एम ए ह्यूमन बीइंग। तो रियल नंबर आता है, फिर आता है रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर। रियल मतलब नंबर बोले तो एकदम द रियल मैन, ऐसा करके याद करो। रियल नंबर आता है, रैशनल नंबर आता है, ठीक है। ये सब आते हैं। तो आज के लिए पहले आप लोगों ने देखा कि भाई नंबर्स ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। तो आगे क्लासेस में हम देखेंगे नंबर्स का ऑपरेशन कैसे करते हैं। आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, जैसे कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन ऑड नंबर लीड्स टू व्हाट, एनी नंबर सपोज 37, उसमें आप एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या होगा, ऑड होगा। अगर 35 एनी नंबर बोले तो अगर 35 भी हो सकता है। सो उसमें एक फॉर्मूला ऐसा निकलेगा, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड कितना है, मतलब 3 इंटू 3 9, ऑड, ऑड इंटू इवन इज इवन, ठीक है। इवन इंटू ऑड, इवन, इवन इंटू इवन, इवन। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट में एक छोटा सा इवन घुसा दो ना, एंटायर प्रोडक्ट को इवन कर देता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, एनी नंबर
हुज डिवीजन विथ 2 इज़ पॉसिबल इज़ एन इवन नंबर। और ऐसे भी आप डेफिनेशन ये कर सकते हो, एनी नंबर whose division with 2 gives 0 remainder is an even number. Any number whose division with 2 gives non-zero as its remainder is called an odd number. ठीक है, जीरो के अलावा जो भी है वो नॉन जीरो है। तो आज हमने बेसिक्स सीखा, आगे क्लास में हम लोग सिस्टमेटिकली इसको सब सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ आपका जो थ्योरी है बुक में उसको आप पढ़ो। इंस्टाग्राम फेसबुक में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, वो भी देखो, लेकिन जो बेसिक्स है वो बुक में ही लिखा है, वो पढ़ो। यहाँ पे ये वाले जो क्लासेस चल रहे हैं, यूट्यूब का जो सेशन चल रहा है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये होता है, क्या होता है, ऑपरेशन कैसे करेंगे नंबर्स में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।